So, boys and girls, today we are going to start with a topic called as liquidation of companies. We have already done with dissolution of partnership firm. Today we are going to study liquidation of companies. Okay, dear friends, when you are going to study this topic, make some notes before we go. So, key points I'll start before I start teaching you this topic, because I want you to understand it with what perspective you should look at this topic. The point number one, this is ruled by Companies Act. This is ruled by Companies Act. Right? So liquidation procedures are ruled by Companies Act. So Companies Act will give you some format. In this chapter, you cannot mess up with the format because this is as per the law. If you want to get right marks, this topic is not at all difficult for you to understand. It is very easy. You can easily get the marks. The only one point you need to remember is you cannot mess up with the format because this format is defined in Companies Act. Is that okay? So if you don't write the answer according to the format, though your answer would be right, you will not get the marks. Format here is of a paramount importance. So one thing which you should take mental note of is you should do format thoroughly. Let us go ahead. So law creates and law destroys. But naturally Companies Act create करती है कंपनी को और Companies Act ही destroy करेगी कंपनी को. तो क्या होता है तब हम देखते हैं. This is a balance sheet, peculiar balance sheet. Suppose when a company goes into the liquidation, you have got this kind of a balance sheet. What happens is, first you will convert this non-cash asset, right, into cash format, and whom are you going to pay? You are going to pay first to the equity share capital or first to the creditors. Equity share capital or creditors. Actually first payment would be done to creditors and the second payment would be done to the equity share capital. This is prima facie which we have understood even in dissolution of partnership firm. कि पहले outside liability का payment करते फिर किसका करते हम? Equity share capital. Agreed? अगर ऐसा देखा जाए तो dissolution और liquidation of companies को combine भी किया जा सकता था, मगर उन्होंने इस टॉपिक को कंबाइन नहीं किया, इसको अलग अलग रखा. तो जो कुछ भी नॉन कैश एसेट को कैश में कन्वर्ट करके पेमेंट करना क्रेडिटर्स का और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का, दिस इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू सी हियर. दिस टॉपिक वुड रादर फोकस ऑन प्रोसीजरल एस्पेक्ट. सो विल स्टार्ट विथ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. क्या प्रोसीजर होती है, कौन से लोगों का क्या रोल है, फिर हम आगे चलते हैं. So beta ji, at the time of liquidation, company recovers the amount from fixed asset, investment and current assets and pays back to the creditors and shareholders. So you can see it like this. This will get converted into cash and this cash would be paid to the creditors, and then my dear friend, this cash, remaining cash would be paid to whom? Equity share capital. Do you all get my point? This is the overall picture. But question comes, who does all this? इन पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर करता है. इन लिक्विडेशन में इट इज बीइंग डन बाय अ लिक्विडेटर. नाउ कम्स द क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द लिक्विडेटर? लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है? क्या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं? क्या डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं? नहीं, इट इज बीइंग अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट. एग्रीड? सो माय डियर फ्रेंड्स, a liquidator is appointed to conduct the dissolution of the company and company ceases to be a going concern. So my dear friend, what is the crux point? Who appoints a liquidator? A liquidator is appointed by High Court. In Companies Act 2013, now High Court will not look at appointing the liquidator. Now there is a NCLT. This tribunal looks after the dissolution or liquidation of the company. So my dear friend, this tribunal is now going to look forward for appointment of the liquidator. मगर है देखरेख सारा कार्यक्रम कोर्ट की देखरेख में ही हो रहा है. एग्रीड? तो लेट अस सी. Whatever may be the reason for insolvency, all companies going into liquidation has to undergo following steps. Step number 1, court receives a petition from the creditors. जहां पे मैं वर्ड कोर्ट यूज करूं वहां पर अभी एक स्पेशल ट्रिब्यूनल इसके लिए फ्लोट किया गया, एनसीएलटी, जिसका नाम है. कोर्ट अपॉइंट्स एन ऑफिशियल लिक्विडेटर. एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं.
board of directors upon the order of the high court prepares a statement of affairs and submits the same to the liquidator. Liquidator takes the custody of the property. राइट तो लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं और कौन क्या बनाता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है. स्टेप 3, liquidator submits the liquidator statement of accounts, court orders dissolution. Liquidator is the person who conducts the dissolution of the company. सर कुछ समझ में नहीं आया एकदम क्लियरली. So now let us understand this whole procedure in depth and in clear because this is the scope of our topic. Step number 1, court receives a petition. Now my dear friend, when I use the word court receives a petition, जरूरी नहीं कि creditor से ही petition मिले. There are multiple ways in which a company can go into liquidation. What could be the multiple ways? One of them is creditors application to the court कि इसको बंद करो, हमारे पैसे नहीं मिल रहे. दूसरा, मेंबर्स द्वारा किया गया लिक्विडेशन, जिसमें मेंबर्स ही खुद बोलते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट कर दो, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस खत्म हुआ. सो देयर आर मेनी वेज इन विच अ कंपनी कैन बी डिसॉल्व्ड. सो पेटिशन किससे मिलेगा, किससे वो एप्लीकेशन रूट होगी? ये जरूरी नहीं कि हमेशा क्रेडिटर हो, इट कैन बी ऑल्सो डिबेंचर होल्डर. इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ पेटिशन विच शुड बी रिसीव्ड बाय द कोर्ट. एक कोई कि इस कंपनी को लिक्विडेट करो, डिसॉल्व करो, राइट. कुछ लिक्विडेशन में जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन होते हैं, वॉलेंट्री लिक्विडेशन मतलब शेयर होल्डर्स लिक्विडेशन, मेंबर्स लिक्विडेशन, इतनी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं की जाती. जहां पे क्रेडिटर का इंटरेस्ट है, जहां पे डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है, वहां पर शायद ये सब प्रोसीजर फॉलो की जाती है. जैसे एक एग्जांपल, एक आदमी है जिसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका जो कोई भी पर्पस था वो खत्म हो गया एंड ही थिंक्स दैट ही नो मोर वांट्स टू कंटिन्यू अ कंपनी. सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन डिसॉल्व द कंपनी, ही कैन लिक्विडेट द कंपनी. नाउ दैट इज द लिक्विडेशन बाय मेंबर्स. इस केस में ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं रहते, मगर जब कभी भी आप क्रेडिटर का पैसा पेमेंट नहीं कर पाते हो, डिबेंचर होल्डर का पैसा पेमेंट नहीं कर पाते हो, बैंक लोन पेमेंट नहीं कर पाते हो, तब जो एप्लीकेशन मूव होती है उस एप्लीकेशन के द्वारा अगर लिक्विडेशन हुआ, सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन डेप्थ वर्किंग्स. फिर इसमें हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहायता लेनी पड़ती है. कैसे, मैं आपको बताऊंगा. और वो क्या बनाते हैं बेटा जी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. जैसे ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, स्टेप 3 में लिक्विडेटर बनाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन. ये देखो, ये लिक्विडेटर है, राइट. कौन लिक्विडेशन करता है? अ लिक्विडेटर. ये आपने जाना. हु इज अ लिक्विडेटर? लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट. अभी के लिए कोर्ट. तो बेटा अगर मैं बताऊं कि ये एक लिक्विडेटर है, अब ये लिक्विडेटर का नाम है चंपक. चंपक को बोला कि भाई जा तू इस कंपनी को डिसॉल्व कर दे, सहारा कंपनी को डिसॉल्व कर दे. सुब्रत और सहारा की कंपनी है जो, उसको डिसॉल्व कर दे, क्योंकि अभी वही केस चल रहा है इसलिए हम बोल रहे सहारा. मेरा आपसे प्रश्न है, चंपक को कैसे पता चलेगा कि उनके पास क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज है? कोई सपना है क्या उनके पास? उसके वो सपना है क्या? मतलब सोचो, आज मैं तुमको बोलता हूं कि ये क्लासरूम है, तुम इस क्लासरूम को डिसॉल्व कर दो, तुम मुझे नहीं पूछोगे इसके कागजात कहां पे, पेपर्स कहां पे, ये एसेट कितने में खरीदी थी, ये एसेट अपनी है कि किसी से भाड़े से आई हुई है? अरे कैसे पता चलेगा उसको कोई चीज? अगर लिक्विडेशन करना है मतलब क्या, असेट्स को कन्वर्ट करना है कैश में. तो इस वजह से हमको इन्वॉल्व करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि लिक्विडेटर को लिटरली कुछ भी पता नहीं होता कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है. तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है. हाउ विल आई अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कंपनी? हाउ विल आई गेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज? तो हम एकदम कॉन्फिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, डर मत मेरे भाई, मैंने कंपनी की वाट लगा दी है, तेरे को सारे डिटेल्स मैं देता हूं. ये देखो, डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रोवाइडिंग यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द कंपनी, कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा. इसीलिए इस चैप्टर पर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाता है बेटा जी? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एग्रीड? ये बीओडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर सुप्रीम कोर्ट, ये सॉरी हाई कोर्ट में सबमिट करती है, और हाई कोर्ट में सबमिट करने के बाद में लिक्विडेटर को कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की कस्टडी लीजिए, चेक कीजिए जो इन्होंने बताया वो सही है कि नहीं है. और जो अगर ये सही है, फिर कोर्ट बोलता है कि हाँ सब कुछ सही है, कस्टडी वगैरह मिल गई तुमको, अब एक काम करो, आप लिक्विडेशन शुरू करो. मतलब लिक्विडेटर बनाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स.
तो बीओडी बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर बनाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एग्रीड? तो देखते हैं बेटा जी, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमको पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि दिस इज प्योरली एज पर कंपनीज एक्ट। मगर आपको ये स्टेटमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं जरा आपको समझ में आता है क्या। पहले कोर्ट रिसीव्स द पिटीशन, फिर कोर्ट ने अपॉइंट किया ऑफिशियल लिक्विडेटर, फिर लिक्विडेटर को क्या प्रॉब्लम थी, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या बनाना, तो कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सबमिट्स द सेम टू द लिक्विडेटर। फिर लिक्विडेटर क्या करता है, ले लेता है कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट में सभी क्रेडिटर्स के नाम और पते होते हैं कि कहां पर कौन से क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, क्यों देना है। डेटर्स के नाम और पते होते हैं, राइट। और भी कई सारी चीजें होती है। तो ये देखिए, ये वाली चीजें होती है, prepare statement of affairs which provides the details like assets of the company, the debts and liabilities, the names of its creditors stating separately the amount of secured and unsecured debts and the debts due to the company। कितने रुपए किससे कहां से आने, डेटर्स के नाम और पते, ये सभी लोगों से पैसा रिकवर करके लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। एग्रीड? तो इसके बेसिस पर इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलेंगे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, ये हम आगे देखेंगे। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, ओके। तो आप सभी लोगों को बोलूंगा कि इस चैप्टर को डिवाइड कर लो पहले अपने नोटबुक में कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्वेश्चन आता है। ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। Am I communicating? So shall we now start with statement of affairs? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नीचे यहां पर लिख दो कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कौन बनाता है, लिक्विडेटर। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल हिंट क्या देता हूं, कैश बुक है ये, कैश बुक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और बीओडी जो बनाते हैं वो किसके हिसाब से है, एक फॉर्मेट बेस्ड है, जो कोर्ट ने दिया हुआ फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से बनता है। चले भी आ गया। नाउ वी हैव गॉट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर्मेट। बड़ा फॉर्मेट में कितनी लिस्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ध्यान रहे, एक भी शब्द इधर उधर नहीं हो सकता, एक भी शब्द इधर उधर नहीं। लिस्ट ए बी सी डी ऐसी चलेगी। मतलब मान लो एक आइटम नहीं है, डी नहीं है, तो सर मैं डी को कैंसिल करके इसको प्रीपोन कर सकता हूं कि ई की जगह पे डी कर सकता हूं क्या, नहीं। जो लिस्ट के नाम है वो रहेंगे, मतलब रहेंगे। आप लिस्ट के नाम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट ए, हाँ रखो इधर, इधर रखो, हाँ ये रख दो इधर, नहीं रख दो इधर भी, हाँ वेरी गुड। फोकस ऑन योर स्टडीज, उल्टा कर दो इसको, हाँ चलिए। अभी लिस्ट ए, असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लिस्ट बी, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लिस्ट सी, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी, डिबेंचर होल्डर्स secured by floating charge. List E, unsecured creditors. List F, preference shareholders. List G, equity shareholders. List H, deficiency और surplus. मैं आपको याद करने का एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं, ये देखिए। सिंपल तरीका, असेट्स राइट के दो है, लिस्ट ए और बी, असेट्स के दो है। लाइबिलिटीज के है सी डी ई, और इक्विटी का है, इक्विटी मतलब बेटा रेसिडुअल पोर्शन आफ्टर पेइंग लाइबिलिटीज, इक्विटी का है एफ जी,
और बेटा लास्ट में डेफिशिएंसी या सरप्लस मतलब प्रॉफिट या लॉस का कितना है? एक। एग्रीड? एक मतलब उसका नाम है एच। इन अदर वर्ड्स वी हैव गॉट ए बी फॉर असेट्स, सी डी ई फॉर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, और एफ एंड जी फॉर इक्विटी दैट इज अ रेसिडुअल पोर्शन। एंड माय डियर फ्रेंड्स डेफिशिएंसी और सरप्लस के लिए कितना है? एक। ये याद करने की स्टाइल। लिस्ट ए मतलब ऐसी असेट विच इज नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, मतलब जो असेट गिरवी नहीं रखी हुई है, विच इज फ्री ऑफ चार्ज, राइट, विच आर नॉट गिवन एज ए सिक्योरिटी, सो उसका नाम आता है असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जिसको हमने गिरवी नहीं रखा। लिस्ट बी असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जिसको हमने क्या किया? गिरवी रख दिया, लिस्ट बी। सो देयर आर टू लिस्ट ए एंड बी। नाउ व्हाट इज सी? C is my dear friend preferential creditors. D is what? D stands for debenture holders. Debenture holder secured by floating charge. D के बाद में E है unsecured creditors. So बेटा A जिसको गिरवी नहीं रखा, B जिसको गिरवी रखा है, C preferential creditors। सर इसका मतलब क्या देखेंगे? D for debenture holders और E for unsecured creditors। इक्विटी में तो सिंपल है, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक कौन सा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लास्ट में बेटा या तो डेफिशिएंसी आएगी या क्या आएगा? सरप्लस। तो चलो पहले मुझे बताओ, लिस्ट ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लिस्ट बी असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर्स सेक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। डी के बाद में ई अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी पोर्शन का। लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जी इक्विटी शेयर होल्डर, और बेटा जी एच डेफिशिएंसी और सरप्लस। सो व्हाट यू सेड वाज राइट। अब मैं तुमको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज लिस्ट ए। तुमको आता है ऑलरेडी, फिर भी देख लो। लिस्ट ए एंड बी एक साथ हम देख रहे हैं। राखी सावंत बैंक से लोन लेती है, राइट, और अपना घर उनको मॉर्गेज के तौर पर देती है, राइट। सो ये जो असेट है, ये असेट क्या है बेटा? फ्री है कि प्लेज्ड है? दिस असेट इज प्लेज्ड। तो ये कहां पर जाएगा बेटा जी? लिस्ट बी में, असेट्स प्लेज्ड। एग्रीड? मतलब अगर हमने असेट गिरवी रखी तो वो कौन सी बजाएगी? प्लेज्ड। असेट्स ट्रांसफर टू द लेंडर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग अ डेट इज नोन एज प्लेज्ड असेट, लिस्ट बी। लिस्ट ए डील्स विथ असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड अगेंस्ट एनी डेट, मतलब किसी को कुछ नहीं दिया है, आपके इंडिपेंडेंट असेट्स है वो। वेराज लिस्ट बी डील्स विथ असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड अगेंस्ट एनी डेट, किसी डेट के अगेंस्ट में जो आप प्लेज करते हो वो क्या होती है बेटा जी? लिस्ट बी। अब सुनते हैं लिस्ट सी। बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि जब कोई भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? यू सेड क्रेडिटर्स, वेरी गुड। और कौन? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट बेटा एक चीज के बारे में हम कभी नोटिस नहीं करते कि जब कभी भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसके एम्प्लॉइज भी इररिपेयरेबल डैमेज सफर करते हैं। कहां जाएंगे जॉब करने के लिए? अगर मान लो सत्यम लिक्विडेट हो जाती तो उसके 55,000 एम्प्लॉइज कहां जाते हैं? और उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देता। अब जैसे आज किंगफिशर की कोई सैलरी नहीं भर रहा है, 4-5 महीने हो गए, एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं मिल रही है। तुम जरा सोचो और बताओ, अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही क्या करेंगे वो? आउटस्टैंडिंग है, कल को कंपनी लिक्विडेट हो गई, तुम मुझे बताओ, जो कंपनी के लिए दिन रात काम कर रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सो गवर्नमेंट ने लिक्विडेशन के प्रोसीजर में एम्प्लॉइज का एक स्पेशल दर्जा रखा है, उनके लिए एक स्पेशल स्टेटस रखी है, जिसके तहत उनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहा जाता है। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में बेटा आपको 7 चीजें पढ़ाई करनी। कितनी? 7। मैं आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 7 चीजें पढ़ाऊंगा, 7 में से 5 एम्प्लॉइज के रिलेटेड है और बेटा जी 2 रिलेटेड है बाकी के। अब 7 में से 5 मैं आपको पहले पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। किसी एम्प्लॉय की सैलरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी, राइट, एक सेकंड मैं बता दूं, किसी एम्प्लॉयज की सैलरी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स।
ये देखो, ये मैं 5 पहले आपको एम्प्लॉयज के पढ़ा रहा हूं. Wages or salary of an employee for 4 months. The wages or salary for 4 months must be due within 12 months next preceding to relevant date. The amount shall not exceed the sum notified by the CG central government presently 20,000 for any one claimant. मतलब क्या, ये देखो, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय मतलब आप बहुत सारे एम्प्लॉय समझ सकते हो. एक एम्प्लॉय, अगर लिक्विडेशन डेट ये है, इस डेट के 12 महीने तक की सैलरी, राइट, ये पीरियड, राइट, हाउ मेनी मंथ्स बिफोर, 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन. इसमें से 4 महीने की सैलरी, हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स सैलरी, which should not exceed 20,000, then my dear friend it is a preferential creditor. मतलब क्या, एक एग्जांपल सुनते हैं. हरीश नाम का एक एम्प्लॉय है, रिलेवेंट डेट से पिछले 12 महीने में, मतलब लिक्विडेशन डेट से पिछले 12 महीने में उसके 1 महीने की पगार है 10,000 रुपीज, और उसकी पगार आउटस्टैंडिंग है 3 महीनों के लिए. तो बेटा कितना आ रहा है, 30,000. तो पहली कंडीशन देखो, पिछले 12 महीने में कोई भी 4 महीने, तो ये सेटिस्फाई हो रही है क्या, यस. पिछले 12 महीने में 3 महीने हैं. पिछले 12 महीने में कितने महीने हम ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 महीने. यहां पर कितने महीने मांग रहा है, कितने महीने से नहीं मिले उसको, 3 महीने. एग्रीड. सो बेटा पिछले 12 महीने से कोई भी 4 महीने की सैलरी जिसका टोटल मिलाकर 20,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. अब यहां पर 10,000, पिछले 12 महीने में 3 महीने, तो ये कंडीशन तो सही. कितना आ रहा है, 30,000. मगर हमारे हिसाब से एक क्लेमेंट के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए हम कितनी सैलरी दे सकते हैं, मैक्सिमम 20,000. तो बताओ यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना हुआ, 20,000. तो सिर्फ बाकी का 10,000 क्या पेमेंट नहीं करना है, करना है, मगर बेटा वो बनेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर लिस्ट ई. 10,000. सो लिस्ट ई में आएगा. 20,000 प्रेफरेंशियल बनेगा लिस्ट सी में, मगर उसके बाद में कहां पे जाएगा बेटा जी, लिस्ट ए में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. रमेश की सैलरी है 4,500 रुपए, और वो सैलरी उसकी 4,500 नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूं. रमेश की सैलरी है 3,000 रुपए, और ये सैलरी उसके ड्यू है 5 महीनों के लिए पिछले 12 महीने में, राइट. तो 3,000 इंटू 5 महीना कितना हो जाता है बेटा जी, 15,000 रुपए, राइट. मैक्सिमम लिमिट है बेटा 20,000, तो उसको कितने मिलेंगे, 15,000 मिल जाएंगे, नहीं, उसको 15,000 नहीं मिल सकते. बेटा जी आप समझो, इसमें लिमिट 2-3 पैरामीटर्स की, एक है 4 महीने की. हम कितने महीने की ले रहे हैं, 5 महीने की. 5 महीने की नहीं ले सकता मैं, कितने महीने की ले सकता, मैक्सिमम 4 महीने की. So 3,000 into how much my dear friend, 4 months, he shall be eligible to 12,000 only. समझ में आ रही बात धन में. उसी तरीके से मान लो एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम है पटेल भाई. पटेल भाई की सैलरी ड्यू है 12 महीने के पहले की 5,000 रुपए. तो सर क्या उसको हम कंसिडर करेंगे क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, नहीं. उनका बोलना यह है कि डेट ऑफ लिक्विडेशन के 12 महीने पहले, उसमें से कोई भी 4 महीने और सभी महीनों की सैलरी मिलाकर 20,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए. तो अगर 12 महीने पहले की कोई ड्यू होगी, 12 मंथ के पहले की कोई ड्यू होगी, तो बेटा वो प्रेफरेंशियल नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में इसका क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. इज दैट ओके? दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं. Accrued holiday remuneration which has become payable to employee in case of his death, in case of death or for any other reason. वो पर्सन हो गया, it is any other reason. तुमने ये सुना होगा इनकम टैक्स में, क्या नाम था उसका, इनकम टैक्स में जो आप इसमें ये करते हो कि हाँ, लीव एनकैशमेंट नहीं, जहां पर वो घूमने करने के लिए जाता है परक्विजिट में, हाँ, लीव ट्रैवल कंसेशन ही है, हाँ राइट, लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसके अंदर वो रेल से
या उसके अंदर वो एयर फेयर से वो जो ट्रैवल करता है. सो बेटा एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन होता है उनके पास, राइट. लीव एनकैशमेंट भी होता है. सो माय डियर फ्रेंड, लीव एनकैशमेंट मतलब जो उसके एक्रूड हॉलीडे है, लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट जो उनकी रेम्यूनरेशन है विच हैज बिकम पेएबल टू एन एम्प्लॉय और इन केस ऑफ डेथ और एनी अदर रीजन. बेटा ध्यान रहे इस केस में, इसमें 4 महीने की या 12 महीने की कोई लिमिट नहीं है. इन अदर वर्ड्स accrued holiday remuneration is payable, that is nothing but leave encashment. 20,000 की लिमिट इस पर नहीं एप्लीकेबल होती. अगला है all amounts due in respect of contribution payable by the company as an employer under any law. However, this is not payable if the company is being voluntarily wound up for the reconstruction or amalgamation. ये लास्ट की लाइन मत पढ़ो, ये हम बाद में देखेंगे. If it is being voluntarily wound up for reconstruction or amalgamation. In other words, जो provident fund का contribution है, ESI का कंट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉयर इन हिज कैपेसिटी. 2 टाइप के कंट्रीब्यूशन होता है ना, एक एम्प्लॉयर का और एक किसका, एम्प्लॉय का. तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है दैट विल बिकम माय डियर फ्रेंड व्हाट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड के लिए या ESI के लिए या ग्रेच्युटी के लिए, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात चल रही है. compensation payable under Workmen Compensation Act 1923 in respect of death or disablement of any officer or employee of the company. So in other words आपको इतना याद रखना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के तहत अगर कोई पैसा मिलने वाला होगा तो बेटा जी वो क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. और बेटा लास्ट है, एनी सम ड्यू टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और ग्रेच्युटी फंड इफ इट इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर. मतलब कोई भी स्टाफ वेलफेयर फंड एम्प्लॉय का इफ इट इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर तो बेटा जी वो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तो बताओ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एम्प्लॉय के रिलेशन में कितने हैं, 5. पहला वाला सैलरी पिछले 4 महीने की 12 महीने के अंदर एक क्लेमेंट को 20,000 के ऊपर नहीं मिलेगा. दूसरी चीज क्या है बेटा जी, हॉलीडे रेम्यूनरेशन दैट इज नथिंग बट लीव एनकैशमेंट. एग्रीड. इसमें कोई भी समय मर्यादा नहीं है और इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है. थर्ड वाला कौन सा है, पेमेंट अंडर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. फोर्थ वन कौन सा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम जो स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है. और बेटा फिफ्थ वन कौन सा है, जो एम्प्लॉय का जमा हुआ पैसा जिसको हम क्या कहेंगे बेटा जी, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज एक्यूमुलेटेड फंड फॉर प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा. ये सारी अमाउंट्स में कोई लिमिट नहीं है बेटा जी और ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनेंगे. अब इसके अलावा और एक चीज है, एनी रेवेन्यू टैक्सेस और रेट्स ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, द अमाउंट शुड हैव बिकम ड्यू and payable within 12 months before the winding up order. The wording is due. अब ड्यू का मीनिंग क्या है देखो, वर्ष 2012 की लाइबिलिटी उन्होंने असेसमेंट कंप्लीट कर मुझे दी है वर्ष 2015 में और मेरा लिक्विडेशन हो रहा है 2015 में. अब 2015 में ड्यू हो रहा है मगर रिलेटेड है 2012 से. तो बेटा अपने को क्या बोला गया, पिछले 12 महीने में जो कोई टैक्स ड्यू होता है तो वो पॉसिबली रिलेट कर रहे हैं 2012 से. तुम्हारा लिक्विडेशन है 2015 में, बीच में गैप है 3 साल का. उन्होंने बोला कि 12 महीने के भीतर का जो टैक्स है वो बेटा कौन से ईयर से रिलेट करता है, इट इज नॉट मटेरियल. व्हाट इज मटेरियल इज कि वो ड्यू कब बन रहा है. जैसे वर्ष 2012 का टैक्स अगर आपका ड्यू बन रहा है, अगर आपको नोटिस आई है 2015 में तो बेटा जी ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनेगा. मतलब कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस जो किसको पेएबल है, गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट या लोकल अथॉरिटी, देन माय डियर फ्रेंड इट विल बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. ध्यान रहे 12 महीने की अवधि इंपॉर्टेंट है. इसमें अब एक और खास बात, मैंने जो वर्ड बोला बहुत क्लियरली बोला, टैक्स, सेस और ड्यूटी. अगर मान लो कि तुम गवर्नमेंट को पानी के लिए कुछ पैसे दे रहे हो, लोकल अथॉरिटी को देते हो ना पानी के लिए पैसा, गार्बेज कलेक्शन के लिए पैसा, राइट. तो अगर आप पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल अगर मान लो अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो वो यहां पर नहीं आएगा, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है. बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टैक्स, ड्यूटी, सेस और एनी रेट्स. मतलब इट शुड बी अ टैक्स ओनली, देन इट विल कम अंडर द लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. अच्छा, ये आय हो जाने के बाद में बेटा 7th पॉइंट,
any expenses of investigation held in pursuance of section 235 and section 237 and appointed and payable by the company, that is nothing but my dear friend investigation करना कि कंपनी क्यों लिक्विडेशन में जा रही है, अगर ये कोई खर्चा हुआ, so this is also treated as what my dear friend preferential creditor. तो एक बार हम बात कर लेते बेटा, 5 किसके रिलेटेड, एम्प्लॉइज के. उसमें से पहला वाला कौन सा है, any salary or wages due for 4 months out of last 12 months and any amount which is maximum payable is how much, 20,000 per claimant. दूसरा, accrued holiday remuneration, leave encashment, no limit, no time limit, no amount limit. Third one, employer's contribution to staff welfare scheme, no limit. Employees fund, accumulated fund in provident fund or staff welfare fund. Any compensation under workman compensation act. ये पांचों चीजें किसके रिलेटेड है बेटा, एम्प्लॉइज की. एंड दिस 5 थिंग्स वुड बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. 6, टैक्स सेस ड्यूटी रेट्स विच आर पेएबल टू गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी विच हैज बिकम ड्यू इन लास्ट 12 months. व्हाट इज क्रक्स पॉइंट इज बिकम ड्यू इन लास्ट 12 months. आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी रिलेटेड टू लास्ट ईयर. करंट ईयर के रिलेशन का जो टैक्स है वो तो आगे फ्रीज होगा ना. तो ड्यू कब हो रहा है, 2015 में अगर ड्यू हो रहा है और 2015 में लिक्विडेशन हो रहा है, सो इट विल बिकम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. और लास्ट पॉइंट कौन सा है बेटा जी, एनी इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 235 एंड 237 इज ऑल्सो व्हाट माय डियर फ्रेंड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एम आई कम्युनिकेटिंग? चलते, अभी मैं आपको लेकर चलता हूं आगे. बेटा आपको पता है कि इन 7 ड्यूज में भी कुछ ड्यूज को और बड़ी प्रायोरिटी मिलती है. मैं आपको सेक्शन 530 और सेक्शन 529 ए का रिलेशन समझाने वाला हूं. तो एक क्रेडिटर का नाम मैं अभी बोलूंगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. तुमको प्रेफरेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया. और दूसरे इसका मीनिंग समझाऊंगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट. ये 529 ए है, ये सेक्शन 530 है कंपनीज एक्ट 2000 नहीं 1956 का. हाँ, सो ये 530 वाला सेक्शन है, ये 529 है. 530 वाला सेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. अब मैं आज आपको बताऊंगा कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है. राइट, तो देखो मैं तुमको बताता हूं कि एक कंपनी है, कितना ब्यूटीफुली बनाया देखो लॉ को. एक कंपनी है, राइट. इस कंपनी की बैलेंस शीट में इस तरफ यहां पर एक लाइबिलिटी है जिसको हम बोलेंगे मॉर्गेज लोन, 5 लाख. ठीक है. और यहां पर बेटा समझ लो आपका है बिल्डिंग जिसको आपने मॉर्गेज किया है, मान लेते 6 लाख. ठीक है. अब इस बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू, ये तो बुक वैल्यू हो गई, रियलाइजेबल वैल्यू है 4,50,000 या मान लेते हैं, ठीक है 4,50,000. ठीक है. अब बेटा मुझे बताओ ये सारा पैसा किसके पास जाना चाहिए, मॉर्गेज लोन के पास जाना चाहिए. कंपनीज एक्ट कहती है रुको, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो आपका हक बनता है कि आप उसके पैसे लो. गवर्नमेंट कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा. सेक्शन 529 ए है बीच में. 529 ए के मुताबिक आपको पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से, वो 5 जो एम्प्लॉइज से रिलेटेड है. तो एम्प्लॉइज का नुकसान नहीं होने देना चाहती कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट बोलती वो कहां जाएगा बेचारा, वो काम कर रहा था दिन रात वहां पर. तो अगर किसी के पास सिक्योरिटी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी लेगा उसके पास बार्गेनिंग पावर काफी अच्छी होती है. आप इमेजिन करो ना कि वो बोल रहा है कि मैं आपको लोन दूंगा, आप मुझे सिक्योरिटी दो. राइट. कोई रिलेशन में भी हो सकता है, डायरेक्टर्स के रिलेशन में भी कोई आदमी हो सकता है जिसने लोन दिया और उसकी वजह से उसको सिक्योरिटी के तौर पर बिल्डिंग दे दी गई. कंपनीज एक्ट बोलती है रुको, तुम बिल्डिंग के सीधे सीधे पैसे मॉर्गेज लोन को नहीं दे सकते. पहले आपको उन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा जो कि 5 है. राइट. और ये कैसे करेंगे, अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पारी पशु एक दूसरे के साथ पैसा बांटेंगे. थोड़ी सी देर के लिए पेशेंस रखो, आपको समझ में आएगा. मैं वापस बोल रहा हूं, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था, एक मॉर्गेज लोन था. वो क्या बोलेगा, बिल्डिंग बेच दी, लाओ लाओ मेरे पास पैसा लाओ. हम बोलेंगे नहीं रुक, तेरे साथ कुछ
एम्प्लॉइज भी है, जिसको हम बोलेंगे 5, वो मैंने अभी 5 पढ़ा है ना, वो 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तेरे साथ पैसा शेयर करेंगे पारी पशु ऑन इक्वल फिटिंग प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। मतलब अगर मान लो इधर ये जो 5 एम्प्लॉइज के ड्यूज है वो है 2 लाख रुपए, और इधर लोन का ड्यू कितना है बेटा 5 लाख रुपए, एग्रीड? या इसको 4 लाख पकड़ लूं, 4 लाख। सो बेटा एम्प्लॉइज के ये ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 5 लाख, ये पारी पशु आप बियर करेंगे। मतलब क्या करेंगे आप 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अभी कितने रुपए मिले आपको 4,50,000। 4,50,000 ऐसे किसको मिल जाते थे पूरे मॉर्गेज लोन को। अब हम बोलेंगे सॉरी आपको कितने मिलेंगे 4,50,000 इंटू 5/9, और इनको कितना मिलेगा बेटा जी 4,50,000 इंटू 4/9, बताएंगे जरा कितना आ रहा है 2,50,000, 2 लाख। मतलब वापिस से बताऊं, ये लोन मॉर्गेज था बिल्डिंग के तहत, बिल्डिंग 6 लाख रुपए की थी, उसके 4.5 लाख रुपए मिले। अगर एम्प्लॉइज बीच में नहीं आते तो पूरे 4.5 लाख रुपए किसको मिलते हैं मॉर्गेज लोन को। समझ में आ रही बात ध्यान में? मगर अब बीच में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ गए, कौन से? वो 5 वाले जो मैंने अभी आपको समझाया एम्प्लॉइज के रिलेशन के, वो बीच में घुस जाने की वजह से उनको भी पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो 529A में उनको ओवरराइडिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये 4 लाख रुपए इनके ड्यू है, तो ये दोनों अभी सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो ओवरराइडिंग है, ये दोनों क्या बन जाते हैं एट पार, मतलब पारी पशु। तो कौन से रेशियो में इनको मिलेगा 5:4। 5:4 में मतलब बेटा कितना मिल जाएगा 2,50,000 और कितना 2 लाख। मगर अब आया कहानी में ट्विस्ट। ये बोलता है सर आपने मेरे पैसे उनको दे दिए, ऐसे कैसे दे दिए? अब मैं क्या करूं सर, मेरे को सिक्योरिटी मिली थी, आपने मेरे पैसे इनको दे दिए, सर गलत किया आपने। गवर्नमेंट बोलती शांति रख। अब जो तेरे को कम पैसे मिले, देखो 4.5 लाख रुपए तुझे मिलने वाले थे पूरे, तुझे नहीं मिल रहे। तुझे कितने कम मिले 2 लाख रुपए कम मिले, एग्रीड? तू बन जाएगा प्रेफरेंशियल, ये जाएगा लिस्ट सी में। सही है ना? अगर मैक्सिमम मिलता तो कितना मिलता 4.5 लाख रुपए मिलता। 2.5 लाख तो तुझे मिल गया, 2 लाख का शॉर्टेज है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज ने तेरा पैसा ले लिया। सो 2 लाख रुपए तक तू बन गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अंडर लिस्ट सी। सिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट पार्ट ऑफ लिस्ट सी। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर, इनका पैसा किसी और ने छीन लिया, किसी और ने ले लिया, इसलिए ये कहां पर आ गया लिस्ट सी में। याद करो मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के डेफिनेशन में बताया क्या? नहीं। मगर सेक्शन 529A की वजह से ये इधर एंट्री कर लेते लिस्ट सी में। सर बचा हुआ 50,000 का क्या करेंगे? क्योंकि इनका डेट तो 5 लाख का था, तो बेटा उस केस में बचा हुआ 50,000 ये बनेगा अनसिक्योर्ड अंडर लिस्ट ई। सर ये 2.5 लाख का क्या होगा? ये 2.5 लाख बेटा जी ये तो सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो ये रिलेशन है 529A का और बेटा जी 530 का। 530 में 7 है, 7 में से 5 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ भी शेयर करने जाते हैं। मगर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का लॉस होता है उसकी वजह से वो वाला पोर्शन वो क्लेम करते हैं एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अंडर लिस्ट सी। और उसके बावजूद भी अगर उनको पैसे की कमी पड़े तो वो कहां पर जाएंगे बेटा जी लिस्ट ई में। ये उसका क्लासिक एग्जांपल है। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। नाउ शैल वी गो अहेड? लिखना है तो लिख लो अंकुर, जल्दी लिखो। सर एग्जाम में ये कंसेप्ट कितनी बार आया है? बेटा अभी तक तो भी एक बार नहीं आया है, मगर आपके मॉड्यूल में है और सही मायने में पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो चलते अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताते। हाउएवर रेगुलर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी डोंट फाइंड एनी प्लेस इन सेक्शन 530। बराबर है, रेगुलर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड को तो नहीं मिलता ना, तो अब कैसे मिलता है मैं तुमको बताता हूं। तो एक है सिक्योर्ड क्रेडिटर और एक है वर्कमैन। ठीक है, वर्कमैन के कितने? वो 5, याद है ना। अमाउंट ड्यू 1 लाख रुपए और इसके अमाउंट ड्यू 4 लाख रुपए, टोटल मिलाकर आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 5 लाख रुपए। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ध्यान रहे ये सिक्योरिटी दी हुई है इसको और उसकी वैल्यू कितनी 3 लाख रुपए। इसको पूरे मिल जाने चाहिए थे 3 लाख रुपए, मगर अब ऐसा हो ना सकेगा क्योंकि इसके साथ में मुंह मारने के लिए आ गए ये वेजेस, मतलब एम्प्लॉइज भी। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो 3 लाख को आप पारी पशु डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे?
question is who will get the payment first, worker because they are preferential creditors as per section 530, or secured creditors because they have security. So my dear friend, it will go under section 529. As per section 529A, A है आगे, secured creditors and workmen dues stands on equal footings. They should get value of the security proportionately. कैसे, ये देखो, मीन्स व्हाट, ये इधर आ गया, 3 लाख की सिक्योरिटी है, दोनों को मिलेगा, एक वर्कमैन को मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा, 3 लाख इंटू 1/5 60,000, और 3 लाख इंटू 4/5 कितना मिलेगा, 2,40,000। अब इस बंदे को कितना शॉर्टफॉल हुआ, कितने का शॉर्टफॉल हुआ, 60,000, एग्रीड, क्योंकि नहीं तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी उसी को मिलती ना, तो कितने का नुकसान हो, उसको 2,40,000 मिला, 60,000, तो 60,000 क्या बन जाएगा, इसके लिए जो ड्यू है वो क्या बन जाएगा, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर लिस्ट सी। और बेटा जी इसका ड्यू कितना है टोटल, 4 लाख, राइट, 4 लाख में से 2,40,000 बन गए, 60,000 प्रिफरेंशियल क्रेडिटर बन गए, बचा हुआ कितना, 1 लाख, 1 लाख क्या बनेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर लिस्ट ई। चेक करते हैं, अमाउंट रिकवर्ड 2,40,000 और अमाउंट रिकवर्ड कितना है, 60,000। अब मैं आपको अगला स्टोरी बता रहा हूं जो मैं इतनी देर से बता चुका हूं आपको। इफ देयर वुड हैव बीन नो वर्कमैन ड्यूज, अगर नहीं होते तो ये पैसा इनको मिलता क्या, नहीं, ये पैसा भी किसको मिल जाता, इसको मिल जाता, एग्रीड। तो टोटल कितना मिल जाता इसको, 3 लाख, राइट। सो क्रेडिटर शुड हैव बीन रिकवर्ड 3 लाख। तो ये दिस इज नॉट अ जस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ये जस्टिस हुआ क्या, नहीं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी दी मगर फिर भी उनका पैसा कौन लेकर चले गए, एम्प्लॉइज। अमाउंट ड्यू टू वर्कमैन इज 1 लाख। अब देखो, हेंस वन मोर सेक्शन 529A इज इंट्रोड्यूस्ड वेयर workmen and secured creditors are treated as overriding preferential payments. They have preference over the other preferential creditors. That means overriding preferential payment, balance unpaid amount of the workman, 1 लाख में से 60,000 गया, कितना, 40,000, ये लिस्ट सी में जाएगा। और शॉर्ट अमाउंट पेड टू secured creditors ड्यू टू शेयरिंग ऑफ द वर्कमैन, ये कितना है, 60,000, राइट, क्योंकि कितना था उनको, कितना मिलना चाहिए था, 3 लाख, मिला कितना, 2,40,000, तो कितना शॉर्ट था, 60,000। सो 60,000 विल बिकम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अंडर लिस्ट सी। और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बाकी का बचा हुआ बैलेंस कितना है जी बेटा जी, 1 लाख, दैट विल बिकम व्हाट माय डियर फ्रेंड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये एग्जाम में आता है क्या, नहीं, मगर जानकारी रहना जरूरी है। अब हम एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके इसमें है। सो प्लीज कम डाउन टू come down to page number, concept question number 1. We are there on page number 9 point what, 5. Are you there? अरे ये क्या हो गया, कैलकुलेट द प्रिफरेंशियल पेमेंट अंडर सेक्शन 530, मतलब कितने, 7। एक्सक्यूज मी, 7। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रिफरेंशियल पेमेंट अंडर सेक्शन 530 इन केस ऑफ एक्स लिमिटेड विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1/4/2006 ओविंग टू गवर्नमेंट फॉर टैक्स ड्यू एंड पेएबल फॉर द ईयर 2004। बेटा 1/4/2006 को लिक्विडेट हुई, इसके पहले कितने महीने, 12 महीने, टैक्स और वेजेस के बारे में रूल था 12 महीने पहले का। सो बेटा 1/4/2006 का माइनस 1 साल कितना हो जाएगा, 2005। तो मैं बोलूं क्या, 1/4/2005, सही है ना। सो बेटा 1/4/2005 का एग्रीड तक जो कोई भी टैक्स ड्यू होगा वो वाला टैक्स बेटा क्या करेंगे हम, 1/4/2005 तक का टैक्स बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। अब मुझे बताओ 1/4/2006 में लिक्विडेट हुआ, फॉर द ईयर 2004-5 22,000, फॉर द ईयर 5-6 21,000। इसमें से प्रेफरेंशियल कौन बनेगा, ओनली 5-6 वाला बनेगा, क्योंकि 1/4/2005 के आगे जो टैक्स ड्यू होगा वो। और उन्होंने वर्ड क्लियर लिखा, ओइंग टू गवर्नमेंट फॉर टैक्स ड्यू एंड पेएबल फॉर द ईयर 4-5
22,000. और बेटा फॉर द ईयर 2005 एंड 6 21,000. सो 21,000 वुड बी व्हाट माय डियर फ्रेंड, प्रेफरेंशियल, क्योंकि ये एक साल पुराना है. अगर वर्डिंग ऐसी होती, इस केस में अगर वर्डिंग चेंज हो जाए, 4-5 का टैक्स ड्यू है करंट ईयर में, सो करंट ईयर में आप उसको ऐड कर दिखाते प्रेफरेंशियल. सो वर्डिंग क्या, इट शुड बिकम ड्यू इन द करंट ईयर. अब हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि 4-5 का टैक्स पिछले 12 महीने में ड्यू नहीं हुआ, पहले का ही ड्यू है, और 5-6 का टैक्स करंट ईयर में ड्यू है, तो इसलिए हमने इसको प्रेफरेंशियल माना. ओइंग टू गवर्नमेंट फॉर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बकवास, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है. एग्रीड. नेक्स्ट वन, वेजेस एंड सैलरी टू सुपरवाइजर एक्स फॉर 5 months. बेटा 5 months ले सकता है क्या? नहीं. कितना महीना? 4 महीना. सो 4 इंटू 4,000 बेटा कितना बन जाएगा? 16,000. सही है क्या? मैं 4 महीने ही ले सकता हूं मैक्सिमम. सो फिर वो 1 महीने का क्या देना ही नहीं पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा. वो क्या बनेगा? लिस्ट ई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. फिर 4 months एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ. तो बेटा मुझे बताओ 4 इंटू 6,000 कितना होता है? 24,000. मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20,000. तो मैं कितनी पकड़ूंगा? 20,000. बिल्कुल सही. 4,000 इंटू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? 6,000 टर्न्स आउट टू 24,000. हाउ मच आई कैन कंसिडर? ओनली 20,000. नाउ accrued holiday remuneration payable to supervisor Z rupees 21,000. ये लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? Yes. हाँ, there is no limit. Compensation due to supervisor W rupees 21,000 under Workmen Compensation Act 1923. ये भी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? Yes. ये पूरा का पूरा 21,000 आएगा. और प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड एंड ग्रेचुटी फंड ड्यू टू सुपरवाइजर, ये भी बेटा पूरा आएगा 21,000. इसमें भी कोई लिमिट नहीं है. तो इसके नीचे आंसर लिख दो बेटा जी आप. ये आंसर आपके लिए रहा. दिया हुआ है, चलो लिख लो. It's just that I cannot do it. Getting my point? You have got an option, which is bad. It's all a matter of choice. चले भी आगे. कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाओ बेटा. मैंने बताया था एक क्वेश्चन लेंगे हम, तो कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, नीचे ही है पॉइंट नंबर 7 के यहाँ पर. There are secured creditors amounting to rupees 5 lakh holding a security estimated worth rupees 4 lakh. In addition, there is a claim of workmen amounting to rupees 1,25,000. Calculate the amount payable to creditors and workmen out of the security and the amount of overriding preferential creditors. बेटा जो 4 लाख है, उस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप 5:1.25 में. बराबर बेटा. देखो, the security of 4 lakh will be divided between the secured creditors and workmen in the ratio of 4:1. यही है ना, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी कितनी है? 5 लाख, और इसकी कितनी है बेटा जी? 1,25,000. तो क्या रेशियो आ जाएगा बेटा? 5 लाख और 1,25,000, मतलब 4:1 या 5:1.25. राइट. सो 4 लाख का 4/5 ये किसको जाएगा बेटा जी? ये जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. कितना? 3,20,000. और 1/5 किसको जाएगा बेटा? 80,000 किसको जाएगा? वर्कमेंस लोन. एग्रीड. मगर बेटा जी वर्कमेंस को जाने की वजह से इनको 80,000 रुपीज कम मिला ना. किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 80,000 कम मिला. तो 80,000 को क्या ट्रीट करोगे आप? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 529A. ही विल बी ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. और बेटा जी बाकी का कितना बचेगा फिर? अभी 5 लाख में से उसको कितना मिल जाएगा? 3,28,000 मिल गया, और 80,000 विल बिकम ओवरराइडिंग. 1 लाख विल बिकम व्हाट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अच्छा, अभी हम इसकी बात करते हैं बेटा वर्कमैन की. वर्कमैन को 1,25,000 में से कितने मिल गए? 80,000. मतलब बच गया कितना? 45,000. 45,000 विल बिकम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 530. ये देखिए
कितना ओवरराइडिंग होगा? कंटिन्यूइंग विथ अबव एग्जांपल, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर विल बी एज अंडर बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ वर्कमैन 1,25,000 minus 80,000 45,000 and short amount paid to secured creditors due to sharing of workmen 4 lakh minus 3,20,000 80,000 1,25,000. अब मैं आपको और एक चीज लिख कर देता हूं यहां पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने होंगे, राइट, लिस्ट ई में इस केस में तो हम बोलेंगे 5 लाख टोटल लाइबिलिटी थी, उसमें से 4 लाख रुपए का हमने या तो उसको प्रेफरेंशियल बनाया या सिक्योर्ड बनाया, उसमें से 80,000 प्रेफरेंशियल बना और 3,20,000 पे हो गया सिक्योर्ड. 1 लाख वुड बी व्हाट माय डियर फ्रेंड, अनसिक्योर्ड. That is the logic. चलो लिख कर दे दूं अभी आपको. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है उसका ब्रेकअप दे रहा हूं. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 5 लाख, उसमें से 3,20,000 वो क्या बनेगा, अभी भी सिक्योर्ड ही रहेगा, राइट. फिर उसके बाद में 80,000 वो क्या बन जाएगा बेटा जी, लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा. और बेटा बचा हुआ 1 लाख वो क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड अंडर लिस्ट ई. और वो नहीं तो भी लिस्ट ई में ही जाता क्योंकि 5 लाख का उसका लाइबिलिटी था, सिक्योरिटी की वैल्यू 4 लाख की थी, तो 1 लाख नहीं तो भी वो अनसिक्योर्ड ही था. समझ में आ गई बात ध्यान में? चलिए अभी हम रुक करते हैं अपनी प्रॉब्लम के पास. इज दैट ओके? प्रॉब्लम के पास रुक करने के पहले एक बार फॉर्मेट के पास आ जाइए. ये देखिए आ जाइए बेटा, यहां पर पहले हम फॉर्मेट देखेंगे. इस फॉर्मेट का नाम है बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. वी आर देयर ऑन व्हाट पेज? वी आर देयर ऑन पेज नंबर 9.2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. बेटा इसमें फर्स्ट पार्ट होता है असेट स्पेसिफिकली नॉट प्लेज्ड, राइट. इधर होता है ईआरवी. ईआरवी मतलब बेटा क्या लिखना होता है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. यू राइट डाउन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा बुक वैल्यू. बुक वैल्यू की आपको ईआरवी ढूंढनी पड़ती है. यहां पर ईआरवी मतलब कितने रुपए मिल पाएंगे इसके, हाउ मच यू आर गोइंग टू रिसीव. रिसीव कितना रिसीव हो सकता है, एक एस्टिमेट वो यहां पर लिखते हैं. फिर आप लेते हो टोटल ए, ठीक है बेटा. फिर लिस्ट बी में असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी, इसमें 5 कॉलम बनते हैं. कौन से 5 कॉलम? पर्टिकुलर्स, ईआरवी जो आपकी सिक्योरिटी है उसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड एंड सरप्लस कैरिड टू द लास्ट कॉलम. एक एग्जांपल देख लेते बेटा. अगर मान लो मैं इधर लिखता हूं मॉर्गेज लोन, राइट, और मॉर्गेज लोन की अमाउंट है, मैं आपको लिखकर बताता हूं 5 लाख रुपए मॉर्गेज लोन की अमाउंट है. आपको ईआरवी मिली 6 लाख, जो मॉर्गेज लैंड है उसका 6 लाख रुपए मिला. अब ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है बेटा, 5 लाख. सो अब डेफिशिएंसी है कि सरप्लस है, सरप्लस, तो मैं इधर लिखूंगा कितना, 1 लाख. और इसी चीज को हम आउटर कॉलम पर लेकर आते हैं यहां पर. ये ईआरवी का मेन कॉलम है. ये यहां पर हम जो कर रहे थे पूरा पार्ट, ये वर्किंग कर रहे थे. वर्किंग में क्या करना है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना देना है, कितने की एसेट रियलाइज हुई है, वो सरप्लस है कि डेफिशिएंसी. जो डेफिशिएंसी हुई इधर, तो यहां से कहां जाता है बेटा, लिस्ट ई में. एग्रीड? हम देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब. उसके बाद में बेटा हम वर्डिंग बोलेंगे एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अगर आपको याद होगा तो मैंने लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच समझाते वक्त मैंने बताया था 2 असेट के. सो लिस्ट ए नॉर्मल, पर्टिकुलर्स और ईआरवी. लिस्ट बी में पहले 5 कॉलम वर्किंग और लास्ट में ईआरवी का कॉलम. जैसे ही वो हो जाएगा तो आप एक वर्डिंग बोलोगे कि हमारे पास कितनी असेट है, तो हम बोलेंगे टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर, किसके लिए, लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज और लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो हम आसानी से बोल पाएंगे. कैसे बोलेंगे देखो, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सी, डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. मतलब सी
डी और ई, आसान है। फिर बेटा नीचे चलते हम, ये यहां पर एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है, दिस इज अ डिस्क्लोजर। पेमेंट का प्रक्रिया शुरू करने के पहले, मतलब किसको किसको क्या क्या पेमेंट करना है उसके पहले डिस्क्लोजर देते हैं, जिसमें हम ग्रॉस असेट की वैल्यू देते हैं। ग्रॉस असेट की वैल्यू में हम क्या करते हैं कि जो भी असेट स्पेसिफिकली प्लेज की उससे कितने रुपए मिले, ग्रॉस वैल्यू। और बेटा जी अदर असेट्स में से जो अपने को अमाउंट मिलने वाली वो। सो सर ये ए बी कहां पर लिखा हुआ है, ये देखो बेटा ए यहां पर लिखा है क्या, ये वाला वैल्यू ए जो असेट स्पेसिफिकली नॉट प्लेज्ड। और बेटा सी कहां पर लिखा हुआ है, ईआरवी, मतलब उससे पेमेंट किए बिना जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू इधर सी। तो ये दोनों चीजों की हम समरी देते हैं, सी प्लस ए। ध्यान रहे जो आउटर कॉलम में जाता है वो जाता है सरप्लस पे। देखो सी मतलब जितना पैसा मिला, जितना हमने क्रेडिटर्स को दिया सिक्योर्ड को, बचा जो सरप्लस वो आउटर कॉलम में आता है। तो नीचे जब समरी दे रहे तब हम क्या करते हैं, डिस्क्लोजर देते हैं कि सिक्योर्ड असेट के पैसे कितने मिले थे। सो ये समरी यहां पर दी, एग्रीड। ये समरी देने के बाद में अब आप लाइबिलिटीज के पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये एक्चुअल पेमेंट नहीं है मगर समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, लाइबिलिटी के पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। पहला स्टार्ट होगा बेटा जी किससे, जो हमने सिक्योरिटी दी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, उसका डिस्क्लोजर वापस देंगे। राइट साइड में मैंने लिखा है नील, ही हमेशा नील रहेगा। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर लिस्ट बी में उनका पेमेंट कर चुके। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो अभी यहां पर ये सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा। क्या आएगा बेटा जी, डिस्क्लोजर। लिस्ट बी से ही शुरू करना है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया वो, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप देख रहे हो तो लाइबिलिटी के लिए मैंने और एक कॉलम ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, एग्रीड। फिर बेटा क्या आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। ये लेफ्ट साइड से भी लेस होगा और राइट साइड से भी लेस होगा क्योंकि इनका पेमेंट करना बाकी है। और जैसे ये लेस होगा, देखो लिस्ट सी का पेमेंट हो गया। अब कौन कौन रहा, डिबेंचर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर हमारी लाइन चेंज हो जाती, देखिए एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर बेटा जी अगला कौन सा है, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। क्योंकि सी का पेमेंट हो गया, फिर डी का करेंगे। डी के बाद में क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर्स। यहां पर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई है कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर जाने के बाद में कितना सरप्लस या डेफिशिएंसी है। और फिर बेटा जी आपका आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। यहां तक कि आपकी लाइबिलिटी का पेमेंट हो चुका है। लिस्ट सी का हो गया, लिस्ट डी का हो गया और लिस्ट ई का हो गया। फिर जो रहता है उसको हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स बीइंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस असेट एंड ग्रॉस लायबिलिटी। आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट अलोंग विद द प्रॉब्लम। फिर क्या है बेटा जी, इश्यूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी, एफ और जी। और फिर लास्ट में या तो सरप्लस आएगी या डेफिशिएंसी आएगी एज पर लिस्ट एच। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो पूरी प्रॉब्लम का देखो, पहले लिस्ट ए सिंगल कॉलम पर्टिकुलर्स ईआरवी, दूसरे कॉलम में लिस्ट बी, पहले 5 कॉलम और ईआरवी का कॉलम चलते रहेगा। पहले 5 कॉलम में पर्टिकुलर्स जो असेट का नाम है वो लिखेंगे, ईआरवी लिखेंगे कितना ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है, कितना सरप्लस है या कितनी डेफिशिएंसी है। जो सरप्लस रहा तो उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, जो डेफिशिएंसी रही तो लिस्ट ई में जाएगी। फिर आप उधर की टोटल लेते हो और बोलते हो एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ द असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एग्रीड। ये एक लाइन लिखोगे आप कितना है। फिर उसके बाद में आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है जिसमें आप समरी देते हो कि हमको कितने रुपए एक्चुअली मिले हैं, राइट। वो मिलने के बाद में आप उसका टोटल इनर कॉलम में देते हो, आप आउटर कॉलम में उसकी टोटल नहीं देते। ये देखिए आपने इनर कॉलम में ये डिस्क्लोजर दिया, आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं है, इनर कॉलम में। फिर ग्रॉस लायबिलिटीज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डेफिशिएंसी, यहां पर एक कॉलम लेफ्ट साइड में भी ऐड होता है जिसका नाम है ग्रॉस लायबिलिटी। डिस्क्लोजर के लिए आप लिस्ट बी में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था किसका पेमेंट किया वो वापस लिखते हो। फिर लिस्ट सी लिखते हो, वो लेफ्ट साइड में भी आता है राइट साइड में भी आता है, मगर जब आप इसका पेमेंट करते हो तब यहां पर आप क्या लिखते हो, निल, लिस्ट बी का, क्योंकि उसका पेमेंट ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। फिर बेटा जी आप क्या लिखते हो, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिर क्या करोगे, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई,
और फिर क्या आ जाएगा बेटा, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स बीइंग डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस असेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटीज। मतलब फिर सीक्वेंस में क्या, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सीक्वेंस में क्या, एक के नीचे एक। फिर आपको लिखना है इक्विटी, और फिर आपको लिखना है, पहले लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट का पेमेंट हो जाएगा। यस, योर क्वेरी। ये जो लाइन है एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ असेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इस लाइन को वर्ड टू वर्ड लिखना है क्या? अगर टेक्निकली पूछो तो हाँ, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। जब तुम पहले असेट्स अवेलेबल है तो पहले प्रेफरेंस सभी के लिए असेट्स है, जैसे ही प्रेफरेंस का करोगे बोलोगे फिर किसके लिए, डिबेंचर्स और किसका, अनसिक्योर्ड। जैसे डिबेंचर्स का हो जाएगा फिर बोलना है कि एस्टिमेटेड सरप्लस ऑफ असेट्स अवेलेबल एज रिगार्ड्स टू द डिबेंचर होल्डर्स, दैट्स इट। सो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 4-5 मिनट ये फॉर्मेट को स्टडी करिए, अगर हो सके तो लिस्ट को लिख लीजिए, क्योंकि आप हमेशा ध्यान में रखना कंसेप्ट समझना और फॉर्मेट को याद करना, ये दोनों चीजें हम साथ में कभी नहीं करेंगे। आपके माइंड को पहले फॉर्मेट में ट्रेन कर दीजिए, फिर हम बेटा जी कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू डिवोट अराउंड 3 to 5 minutes on working with this format.